Let's we start with our next topic. We have done up to the page number 42 and 43. Now we are going to page number 44. We have done the internal organ of male reproductive system. Now we are going to do external part of the male reproductive system. Look on page number 44. The penis. The penis is the male external genitalia. It is made up of the special tissue. The function of the tissue is very important. Numbers of time it is asked. Look, highlighted tissue that helps. Highlight from the that helps. That helps in erection of the penis. Complete organ is known as the penis. And that penis, when ready to insemination, that process, the elongation of the penis is known as the erection. The tissue that helps in erection of the penis to facilitate the insemination. The enlarged end in that penis, the enlarged end of penis is called as the glans penis, and it is covered with folded skin, that is known as foreskin. Also highlight the foreskin and put a question mark on the side. So look here. From these they were asked two questions. One was in MCQ and one was in the very short question. One was how the insemination take place in human being, which organ is helpful and how it is functional. Second one, what is the meaning of the foreskin? Okay. Look, beside this, male reproductive system also contain three accessory glands. The male accessory glands includes paid seminal vesicle. Which one? Seminal vesicle. It is a paid. Then a prostrate. चलो देखो, there is written include paid seminal vesicle. Paid seminal vesicle number 1. A prostrate number 2. It is a single. Be careful. Once again third one. And paid bulbourethral glands. 3. On see third one, paid. Means 2 are paid. Which two are paid? Seminal vesicle and bulbourethral glands. Which one is a single one? Prostrate. Secretion of these glands is all the three. Combined, those secretion known as means constitute the seminal plasma. क्या बोलेंगे उसको? सेमिनल प्लाज्मा. स्पर्म के साथ में जो स्पर्म टेस्टिस में से रिलीज होकर आया है उसको फ्लूइडिटी देने के लिए, टू प्रोवाइड इट्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, जो भी फ्लूइड आया है वो ये तीनों ग्लैंड में से आता है. एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज द सेमिनल प्लाज्मा. When the seminal plasma is considered along with the sperm, it is known as the semen. Look, this seminal plasma is rich in fructose. काय के अंदर? fructose. Highlight करो fructose, calcium and certain enzymes. The secretion of bulbourethral gland also helpful for the lubrication of the penis. पेनिस को लुब्रिकेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए भी हेल्पफुल मिलता है. तो देखो, लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. लुक व्हाट द पेनिस. व्हाट इज द पेनिस? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. व्हाट इज द पेनिस? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. व्हाट इज द फंक्शन? सो लुक, इट फंक्शन इज that it is made up of special tissue that helps in erection. इसके अंदर हेल्प करता है वो erection of the penis.
Erection of penis is necessary. Why? So it is that erection facilitate insemination. यानी काय के अंदर वो फैसिलिटेट करता हैगा स्पर्म को रिलीज करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको बोलेंगे इंसेमिनेशन। और वो इंसेमिनेशन करने के लिए जो है उसके लिए वो उसकी जो स्पेशल टिश्यू है वो स्पेशल टिश्यू हेल्पफुल है। एज वेल एज पेनिस का एंड इस enlarged end is known as glans penis। क्या बोलेंगे उसको? glans penis, which is covered by loose fold skin known as the foreskin। बोलो वो loose skin को क्या बोलेंगे? foreskin। ओके चलो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स अभी हमने करी थी। What are these male accessory glands? So number 1 there is the paired seminal vesicle, number 2 prostate, मैंने पहले ही बोला prostate is a single one, and number 3 paired bulbourethral glands। कौन सी paired है? 1 and 3 paired seminal vesicle, paired bulbourethral glands। सेकंड वन जो हम मेंशन करिए वो कैसी है? सिंगल है, प्रोस्टेट। Look, the function of the bulbourethral glands, what is it? Its secretion helps in lubrication of the penis। Be careful, ये function of bulbourethral glands हमेशा याद रखना। Its secretion also help in lubrication of the penis। Okay, चलो वो बल्बोयूरेथ्रल का तो स्पेशल फंक्शन है, बट सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल तीनों का जो लिक्विड आया उसके लिए क्या कहेंगे? दैट इज कंसीडर्ड सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स आर कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे वो सबको कंबाइनली तीनों के उसको सेमिनल प्लाज्मा। और बोलो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या रहता हैगा? फ्रुक्टोज, कैल्शियम प्लस सर्टेन एंजाइम। सेमिनल प्लाज्मा का बना हुआ है फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। चलो इसके बाद में हमको अभी स्टडी करना है क्या? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट वी विल टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिफोर प्रोसीडिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू प्लीज वन टाइम रिवाइज दिस वन। क्या जो हमने अभी करा पेनिस से स्टार्ट करके एक्सेसरी ग्लैंड तक एक बार कर लो, उस करके कर लो, फिर आगे स्टार्ट करो। सो लुक हियर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑन पेज नंबर 44। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ओवरीज। नंबर 1 करो, पेयर ओवरीज along with a pair oviduct, ovary produce ovum। तो वो ओवम को आगे मूव करने के लिए जो ट्यूब है, that ट्यूब is oviduct और fallopian ट्यूब। तो वो जो ट्यूब है वो भी दोनों ओवरी के साथ में एक एक रहेगी। Be careful, this fallopian tube does not directly in contact of the ovary। ओवरी से थोड़ा दूर रहता है, ओवरी से थोड़ा दूर रहता है वो। So look, paired oviduct, then वहाँ paired oviduct को नंबर 2 करो। बोलो यहाँ पे दो ही चीज पेयर है, कौन सी? ओवरीज एंड ओविडक्ट। बाकी का सब सिंगल है। क्या है उसके बाद का पोर्शन? यूटेरस, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है, दैट इज नोन एज यूटेरस। उसके बाद का नैरो पोर्शन है उसको बोलेंगे सर्विक्स। उसके बाद का एंड ट्यूब है उसको बोलेंगे वजाइना। क्या बोलेंगे? वजाइना। सो व्हाट आर द पार्ट्स? नंबर 1 पेयर ओवरीज, नंबर 2 पेयर ओविडक्ट, नंबर 3 यूटेरस, नंबर 4 सर्विक्स, नंबर 5 वजाइना। बरोबर है? अब इसको समझने के लिए बरोबर ऑपोजिट ये जो फिगर है वो देखो। देखो दोनों साइड पे एक एक क्या दिए? ओवरी दिए, ओवल से मिले हमारी राइट हैंड साइड पे, बट फिगर में ऐसा देखने आओ तो लेफ्ट हैंड साइड की ओवरी वहाँ पे लेबल की है।
सो लुक ओवरी, ओवरी के साइड पे तुम ऐसा 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 सपना देखोगे, दिख रहा आएगा, जिसके ऊपर ऐसा फिंगर लागेगा, वो पूरी एक ट्यूब हैगी। बोलो वो पूरी ट्यूब को लिखा है फेलोपियन ट्यूब। वो फेलोपियन ट्यूब के इनिशियल पार्ट को लिखा है इन्फंडिब्यूलम, दूसरे पार्ट को लिखा है एम्प्यूला, और एंड पार्ट को लिखा है क्या, इस्थमस। बरोबर है। तो एक साइड पे एक ओविडक्ट, दूसरी साइड पे दूसरी ओविडक्ट, मींस ओविडक्ट आर इन पे। चलो दोनों साइड की ओविडक्ट देखो ओवरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। कितने स्टूडेंट उसके साथ में जो ऐसी लाइनिंग है वो लेकर आते हैं, बोले सर वो देखो कनेक्टेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन, कि ओवम जैसे रिलीज हुआ तो डायरेक्ट उसमें ऐसा नहीं आता है, जैसे साइड पे जो लाइन ऐसी ड्रॉ करी है दैट इज ओनली कनेक्टिव टिश्यू, जिससे वजह से सपोर्ट मिलता है। अभी हम देखते हैं उसको। चलो देखो बाद में का ये जो पूरा जो इतना पार्ट है ट्रायंगुलर जैसा पियर शेप जैसा दिखता है, बोलो उसको हमें क्या बोलेंगे, यूटेरस। क्या है वो, यूटेरस। ये पूरा यूटेरस है। वो यूटेरस के बाद में का ये जो इतना जो पूरा पोर्शन है ट्यूब, नैरो ट्यूब, दैट इज द सर्विक्स, और उसके ट्यूबुलर पोर्शन ल्यूमेन को बोलेंगे व्हाट इज इट, सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स का ल्यूमेन सर्वाइकल कैनाल। वो सर्विक्स जब कैनाल से एंड होता है तो फिर से ट्यूबुलर पार्ट ब्रॉड हो जाता है। वो ब्रॉडेड पार्ट को क्या बोलेंगे, वजाइना। सो लुक हियर, लेट्स वी मूव टू पेज नंबर 44, लास्ट पैरा। Ovaries are the primary female sex organs. Main sex organ वही है, क्योंकि ओव्यूम वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। If you stop, if it is absent, then there is no meaning of the female reproductive system. क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स ओवा प्रोड्यूस ही नहीं होगा, रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट मींस ओव्यूम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन देखो, स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में उन्होंने ब्रैकेट में दिया है। कौन से स्टेरॉइड हार्मोन, दो स्टेरॉइड हार्मोन व्हिच आर नोन एज ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरी के हार्मोन्स आर ऑलवेज ऑफ स्टीरॉइड टाइप। 11th स्टैंडर्ड लास्ट चैप्टर जो क्लासिफिकेशन है हार्मोन का, उसमें दैट इज द वन टाइप ऑन द केमिकल बेस, दैट इज स्टीरॉइडल हार्मोन्स। तो याद रखना है कि ओवरी में से जो भी हार्मोन्स आएंगे दोस आर ऑलवेज ऑफ द स्टीरॉइड टाइप। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये भी एब्डोमेन में ही है, और एब्डोमेन के कौन से पार्ट में, लोअर पार्ट में। मेल में भी एब्डोमेन में पेल्विक के रीजन में था, बट उसके अंदर जो उसका प्राइमरी सेक्स, मेन सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, दे आर आउट ऑफ द एब्डोमेन, और यहाँ पे क्या है, पूरा एब्डोमेन के अंदर है। याद करो, why those are out of the abdomen, because the internal body temperature is not supporting the production of the sperm. उसके लिए बोलो वो टेस्टिस आउट ऑफ द बॉडी मींस एब्डोमेन के बाहर स्कॉटम के अंदर है। जब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव से ओवम के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कंप्लीटली इनसाइड द एब्डोमेन। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. बोलो ओवरी की लेंथ कितनी है, 2 to 4 centimeter, and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. अभी मैंने बोला था, बोलो ये ओवरी और ये ओविडक्ट को जो लाइन दिखती है तो सब बोले से वो कनेक्टेड है, नहीं, उसको सपोर्ट करा है, अटैचमेंट दिया है, लिगामेंट की है वो। Each ovary is covered by thin epithelium. बोलो ओवरी के बाहर का जो एपिथेलियम है उसको कैसा, thin epithelium, which is enclosing internal ovarian part that is known as the stroma. बोलो ओवरी के मेन इंटरनल पार्ट, कवरिंग के अंदर का पूरा पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। इंटरनल पार्ट इज नोन एज द स्ट्रोमा। याद करो, याद आया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी इंटरनल पार्ट है जो उसके डबल कवरिंग के अंदर है, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा।
और मेम्ब्रेनस उसको लेमेली बोला था, लेमेले का, लेमेली मीन्स थिन, थिन प्लास्टिक जैसा ऐसा ऐसा सा फोल्डिंग, वो लेमेली, और बाकी का इंटरनल पार्ट स्ट्रोमा। तो यहाँ भी पूरे इंटरनल पार्ट जो एपिथेलियम लेयर से कवर्ड है उसका नाम दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। The stroma is divided into two zones. Those zones are the peripheral cortex and inner medulla. बोलो पेरिफेरल क्या आएगा? कॉर्टेक्स। ऐसा पूरी ओवरी है, ओवरी का एक कवरिंग हो गया, कवरिंग के अंदर का जो पार्ट है स्ट्रोमा, बोलो स्ट्रोमा का ऐसा ऐसा चारों तरफ का ऑल द साइड पेरिफेरल, और मिडल बोलो पेरिफेरल पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलो पेरिफेरल पार्ट बोलो क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। इंटरनल पार्ट मेड्यूला, और ऐसा कॉर्टेक्स और मेड्यूला दूसरी जगह भी आया। एक ग्लैंड, which gland which is present just above the kidney, adrenal gland. हाँ, as well as it is also when you have studied the internal structure of the stem and root, उसमें भी आएगा मिडल पार्ट मेड्यूला, और उसके आजू बाजू एपिडर्मिस के नीचे का पूरा सराउंडिंग करता है, वो क्या था? कॉर्टेक्स। So look here, now we are moving to oviduct. The oviducts means fallopian tube on page number 45. The oviducts means fallopian tubes. Uterus and vagina constitute the female accessory ducts. बोलो female accessory ducts में क्या हो गया? fallopian tube, uterus, vagina. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long. Highlight करो. This was asked in 1 mark question. And extended from the periphery of each ovary. देखो क्या किया है? Periphery of the each ovary. Direct उसपे से नहीं है, periphery of the each ovary. To the uterus. वो डायरेक्टली uterus में अटैच है. उसके फ्यूजन से ही uterus बना है. दोनों तरफ की ओविडक्ट आके फ्यूज हुई तो ही तो uterus बना है. बट वो ओवरी के साथ में अटैच नहीं है. The part closer to the ovary is the funnel shape called infundibulum. The edge, infundibulum देखो वहाँ पे दिया उसकी edge, ऐसी ऐसी सी फिंगर जैसे है. The edge of the ovary is edge of the infundibulum possess finger-like position known as fimbriae. क्या बोलेंगे उसको? Fimbriae बोलेंगे. Which help in collection of the ovum after ovulation. What is the meaning of ovulation? Release of ovum. Ovum release हुआ तो इन fallopian tube डायरेक्ट अटैच नहीं है, थोड़ा ऐसा आएगा. यहाँ से जो ovum release हुआ तो ये जो infundibulum ऐसा 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 समूह करता है, उससे वो अट्रैक्ट होके अंदर की तरफ मूव करता है. वो The infundibulum leads to a wider part of the ovidus called ampulla. वो जो wider part होता है उसको ने क्या बोलेंगे? Ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has a narrow lumen and it is joins with the uterus. किसके साथ join करता है? Uterus के साथ join करता है. चलो बोलो हम इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोलो पहले नंबर 1, which one? Pair of ovaries. Number 2, pair of oviduct. Number 3, uterus. Number 4, cervix. Number 5, vagina. These are the 5 major part of the female reproductive system. उसमें से major 1 primary कौन सा है? pair ovaries. बाकी ये सब accessory है. Accessory is to support to carry out particular function. चलो यहाँ से हम अपने पहले देखेंगे, बोलो उसके ने साथ में एक्सटर्नल जेनेटेरिया भी होता है. along with this paired मेमोरी ग्लैंड, बोलो एक्सटर्नल जेनेटेरिया में बोलो कौन आता है? मेमोरी ग्लैंड्स. ये जो अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने का रह गया था. It integrated and structurally and functionally to the support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. बोलो वो जो मेमोरी ग्लैंड्स है, it is integrated structurally and functionally. वो इंटीग्रेटेड है, उसके साथ जॉइंट है. लाइक ये स्ट्रक्चर से भी और फंक्शन भी.
काय के लिए? टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ नंबर 1 ओव्यूलेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन। जनरली क्वेश्चन era इसके सर ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन इसके साथ में मेमोरी ग्लैंड कैसे आया? दैट वे वी विल स्टडी आफ्टर 2 लेक्चर्स। फर्टिलाइजेशन, देन 1 प्रेगनेंसी में भी जो कुछ चेंज होता है उसके साथ इट इज आल्सो एसोसिएटेड। देन नंबर 4 बर्थ एंड नंबर 5 बोलो क्या आएगा? चाइल्ड के। व्हाई? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट इट रिलीज द मिल्क। इफ दैट मिल्क इज रिलीज द न्यूबॉर्न इज सेटिस्फाइड विद दैट मिल्क, उससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उससे उसको एंटीबॉडी मिलती है। देखो मैंने खाली न्यूट्रिशन नहीं बोला, क्या बोला? सेटिस्फाइड, उसकी सब नेसेसिटी उसी से ही सेटिस्फाइड होती है। दैट्स व्हाई आई मेंशन व्हाट इज सेटिस्फाइड। अगर जो मेमोरी ग्लैंड इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड नहीं होती तो क्या होता? प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता, डेवलपमेंट हो जाता, बर्थ हो जाता, बट चाइल्ड की नीड्स एंटीबॉडी की हो, कुछ भी हो, इम्यून सिस्टम की हो, कि दूसरी उसकी फूड की हो, वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो चाइल्ड मर जाता। एंड इफ दैट न्यूबॉर्न चाइल्ड डेड, देन it's not functioning the reproduction. The meaning of the reproduction is also what? That to continue generation and generation. If that child die, it does not continue generation, so it does not satisfy the reproduction. तो वो रिप्रोडक्शन को चालू रखने के लिए कौन है? मेमोरी ग्लैंड। तो ये मेमोरी ग्लैंड का जो इम्पोर्टेंट है वो तुमको याद रखना है, बाजू पे नोट में लिख लो, बुक में लिख लो, इम्पोर्टेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ये जो सब वर्ड है उसके साथ में उसको याद रखना है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट विद द ओवरीज। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, दैट इज नोन एज ओवम, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। व्हिच स्टेरॉइड हार्मोन? ओवेरियन हार्मोन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसका लोकेशन ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, इनसाइड। तो उसका साइज लेंथ इज 2 to 4 सेंटीमीटर। चलो, उसका कनेक्शन कैसे कनेक्टेड है? कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट्स। हाईलाइट करना लिगामेंट उसको कहां से कहां कनेक्ट करता है? एक साइड से पेल्विक वॉल और दूसरी साइड से यूटेरस। क्यों? ऐसा एब्डोमेन का रीजन है, यहाँ पे क्या रहेगी? ओवरी। तो ओवरी ये जो बॉडी सिलोन के पार्ट में, अंदर के पार्ट में आएगी, बोलो अंदर के पार्ट में, तो उसको स्ट्रक्चर ही लिगामेंट इधर से भी सपोर्ट करेगा, इधर से भी सपोर्ट करेगा, दोनों तरफ से उसको बांध के रख देगा। कवरिंग ईच ovary is covered with the thin epithelium which enclose ovarian stroma। वो क्या करेगा? वो ओवेरियन स्ट्रोमा को कवर करेगा। स्ट्रोमा is 2 zones। What are the 2 zones? Peripheral cortex and inner medulla। वो जो पूरा है आउटर ऐसा कवरिंग है, कवरिंग के अंदर ये कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स के अंदर है वो उसका नाम मेडुला। चलो, अब आएगा एसेसरी डक्ट्स, फीमेल एसेसरी डक्ट्स। बोलो फीमेल एसेसरी डक्ट्स में फर्स्ट वन है, बोलो कौन है? फैलोपियन ट्यूब्स, आल्सो ओविडक्ट्स। They are 10 to 12 centimeter long, extended from the periphery of the each ovary to the uterus। each ovary से uterus। उसके पार्ट बोलो, फर्स्ट पार्ट infundibulum, that part is closer to the ovary and it is funnel shaped। बोलो closer to ovary, headed to ovary नहीं है, closer to the ovary and it is a funnel shaped। चलो, सेकंड पार्ट वही इंफंडिबुलम का ही पार्ट है, वो उसको सेकंड पार्ट नहीं कहेंगे, इंफंडिबुलम का स्ट्रक्चर कहेंगे। फिमरी, इट इज द एज ऑफ द इंफंडिबुलम, इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन। अभी हमने बोला था वो डायरेक्ट अटैच नहीं है, तो जैसे ही ओव्यूम रिलीज हुआ ये इंफंडिबुलम की फिमरी ऐसे ऐसे करके ओवम को कलेक्ट कर। एम्प्यूला, इंफंडिबुलम का जो ब्रॉड पार्ट है उसको बोलेंगे एम्प्यूला। तो सेकंड पार्ट आया
ampulla. Infundibulum leads to the wider part of the oviduct, that is ampulla. And third one, isthmus. Last part of the oviduct which narrow lumen, which is with narrow lumen, enjoy uterus. तो देखो ये जो हुआ ये फर्स्ट क्या हुआ, ऐसे सभी डक्ट्स आया समझ में। अब देखो इसके आगे का, The uterus is a single and also called womb. फिगर में इसको पूरा हम फिगर में देखो, फिगर में जाओ, हमने अभी हमने देखा था, बोलो क्या आएगा वो, यूटेरस देखा, ट्राइंगुलर, ये this triangular is the uterus, also known as the womb. The shape of the uterus is like inverted pear. Pear दिखता है ना फ्रूट, inverted pear, ऐसे हमको ट्राइंगुलर दिखता है, बट जब हम पूरा उसको कंप्लीट देखेंगे inverted pear जैसा होता है। It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. बोलो उसको भी किसने सपोर्ट करा है, लिगामेंट ने, और वो किससे अटैच हुआ है, पेल्विक वॉल से। तो देखो क्या होता है, इधर बीच में एक क्या आएगा, सॉरी पहले से हम लेते तो बोलो दोनों साइड पे हम हमें लेंगे तो ओवरी है, दोनों साइड पे ओवरी, ओविडक्ट, और बीच में आता है, बोलो बीच में जो ये पार्ट आता है, बोलो कौन सा पार्ट, यूटेरस। यूटेरस के साइज सिंगल है, तो देखो यहाँ पे ये यूटेरस ऐसा पियर से, ये ओविडक्ट और यहाँ ओवरी। अब ये बॉडी है, बॉडी में इसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, बॉडी वॉल के साथ में ऐसे इसके साथ में बोलो क्या आया हुआ, ये क्या है, ये सब पूरी लिगामेंट है। Ligaments attached to the pelvic wall. The uterus opens into vagina through narrow cervix. जब यूटेरस ओवर हो जाता है, अभी हमने फिगर में, बुक की फिगर में देखा था, तो ये यहाँ पे आगे वजाइना आता है। ये जो वजाइना है, ये वजाइना के पहले का इतना जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सर्विक्स। क्या बोलेंगे उसको, सर्विक्स। ये जो मैंने डार्क बनाया है दैट इज द वजाइना, ये जो बीच में का पार्ट है उसको सर्विक्स। The uterus into vagina through the narrow cervix. The cavity of the cervix is called cervical canal, which along with vagina forms a birth canal. Highlight करो, cervical canal which along with the vagina form the birth canal. पूरा highlight करो, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक ये cervix है, ये vagina है, और पूरा इतना आएगा तो उसका नाम birth canal। बहुत अच्छा एक हो गया, बोलो दे में आंसू ए बी इन दिस कंप्लीट सी। ए को क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल, बी को क्या बोलेंगे, वजाइना, और ए एंड बी कंप्लीट यानी सी को क्या बोलेंगे, बर्थ कैनाल। क्योंकि यहाँ पे वोट एवर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ वो इसमें से, ये इसमें से पास होकर उसका बर्थ हो जाएगा, उसके लिए जो पूरा पार्ट है दैट इज नोन एज द बर्थ कैनाल। Along with the vagina forms a birth canal. The wall of the uterus has 3 layers tissue. That external thin membrane is perimetrium. Highlight करो, perimetrium। बोलो अब ये हम अभी ये जो पार्ट देख रहे हैं, बोलो कौन सा पार्ट, अभी हम फिगर में वहां पे देखते ही हैं, ये जो वॉर्म है, ये वॉर्म का जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर है, बरोबर थोड़ी फिगर नहीं आई, चलेगा चलो, या आउटर जो वॉल है, आउटर इसकी चारों तरफ से पूरा जो इधर से इसका इतना इतना जो पूरा कवर है, जो ये जो सेक्शन है वर्टिकल सेक्शन है, नहीं तो ये पूरा ऐसा ऐसा दिखेगा। जैसे बोलो ऐसा है, ऐसा कट करा, कैसा आएगा, ये पूरा ये ऐसा आएगा,
ऐसा कट कर, ये इसका होलो पार्ट, ये आउटर सरफेस, क्या बोलेंगे इसको, पेरिमेट्रियम, सॉरी एपिमेट्रियम, क्या हम बोलेंगे, एपिमेट्रियम। यानी पेरिमेट्रियम, सॉरी ये फिगर और ये पूरा कंबाइन करने में जस्ट फ्रंट ऑफ द कैमरा इतनी प्रैक्टिस नहीं, सो लुक दैट थिन मेम्ब्रेनस इज पेरिमेट्रियम, मिडल थिक लेयर इज स्मूथ मसल मायोमेट्रियम। बोलो ये जो है मिडल पार्ट, ये मायोमेट्रियम, स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल। बोलो ये बाहर का जो एक प्रोटेक्टिव कवर है पेरिफेरी का, ऑल द साइड है, आउटर साइड होगा, ये सेक्शन है, ये हमको तो कभी कहीं से भी देखेंगे हमको तो पेरीमेट्रियम ही दिखेगा, सेक्शन लेके देखा तो बोलो ये पेरीमेट्रियम दिख जाएगा। फिर ये इसके अंदर बोलो पेरीमेट्रियम के नीचे है ठीक क्या आएगा, स्मूथ मसल, और एन इनर मोस्ट दैट इज द ग्लैंड्यूलर, दैट वन इज ग्लैंड्यूलर मींस ग्लैंड्स का बना हुआ, एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूटेरियन कैविटी। बोलो सबसे अंदर का जो बना हुआ है बोलो उसको इन्हें क्या बोलेंगे, सबसे अंदर यहाँ पे है वो ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्स, पर्टिकुलरली ब्लड कैपिलरीज एक्सेट्रा, इसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम। जब यहाँ से जो भी ओव्यूम रिलीज हुआ यहाँ पे आया, फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज होके यहाँ पे आया, तो वो जाइगोट यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, वो जाइगोट जहाँ पे इम्प्लांटेशन होके डेवलपमेंट करेगा, तो बोलो ये पूरा डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, एंड्रोमेट्रियम। जब इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ तो ये जो मायोमेट्रियम में जो मस्क्यूलर है कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर आने से ये पूरा जो एम्ब्रियो इसमें से पास होगा, किसमें से, सर्वाइक्स एंड वजाइना से। उसके लिए सर्वाइक्स एंड वजाइना वो क्या बोला था, बर्थ कैनाल बोला। That the uterine cavity. The endometrium undergoes the cyclic changes during the menstrual cycle. बोलो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे हम समझते हैं, जो आगे डिटेल में आएगा। Look, when here from here ovum is released, so it is not that every time every ovum will fertilize. Numbers of time, only during the complete life 2 or 3 ovum get fertilized. कितनों में तो लाइफ टाइम फर्टिलाइजेशन होता भी नहीं है, जो भी होगा दैट इज द अदर थिंग। तो बोलो ये ओवम यहाँ पे आया, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये जो ग्लैंड्यूलर डेवलपमेंट हुआ था किसको सपोर्ट करने के लिए, जाइगोट को, वो टूट जाएगा, इट डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज फ्रॉम हियर। बोलो सेकंड ओवम रिलीज होने का टाइम आएगा तो वंस अगेन दिस ग्लैंड्यूलर एंडोमेट्रियम विल बी डेवलप। क्यों डेवलपमेंट होगा, जो ओवम आया फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट को सपोर्ट करना है, बट जाइगोट नहीं बना और यहाँ पे नहीं आया तो ये डिसइंटीग्रेट होकर रिलीज हो जाएगा। तो जो फॉर्मेशन होता है डिसइंटीग्रेट होता है, फॉर्मेशन होता है डिसइंटीग्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो एंडोमेट्रियम जो साइक्लिक मैनर से चेंज करता है दैट टेक प्लेस इन एंडोमेट्रियम, while myometrium exhibits strong contraction during the delivery of the body। बोलो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के लिए बोले यहाँ से मायोमेट्रियम आएगा, बरोबर है। तो देखो इतना एक बार रिवाइज करो, इससे आगे का वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।